वेलकम बैक ऑन स्टेम बाबा। हम चैप्टर पढ़ रहे थे रोटेशनल डायनेमिक्स एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम and till now we have discussed 5 topics in this chapter. Number 1, we discussed about torque. Then number 2, we discussed relation between torque and angular acceleration. Then third topic we discussed was zero torque and static equilibrium. Next, center of mass and balance. And then we discussed in the previous video the dynamic application of torque. Now we'll discuss a very crucial topic in physics that is called angular momentum. So let's start the video. Okay, so angular momentum. Now in our previous season we discussed about linear momentum, and in that we discussed that if a mass is moving with velocity v, then its linear momentum p is defined as mass multiplied with velocity v. This is the way we describe the linear momentum. In a similar fashion, if a point mass m is moving in a circle with radius r, so its angular momentum L is defined as L equals to I into omega, and its unit we have kg meter square per second, right? And this formula is valid for any object, whether it's a disk, cylinder, anything. But if you consider this thing for a point mass, the moment of inertia I can be written as mr square, right? And omega can be written as v over r by using circular motion. Then we can write that L will be equals to I, we have mr square, omega we have v over r, right? From here few things will cancel, this will cancel. So what we are left with, m into rv. And if you recall, m into v is what? The linear momentum. So another way we can write that L will be equals to m into v, we can write it as p and r times p. This is another way to write angular momentum, but be careful, this formula is valid only for point mass moving in a circle. And this formula is valid for any case, whether it's a cylinder, anything. So L equals to I omega. But this is only for uh, point mass. Now we can generalize this result. Suppose the point mass is moving with velocity v at an angle theta with the position vector r. So इस केस में अगर हम angular momentum लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? Now, in the last few video we discussed about torque. Now torque में हमने ये देखा था कि जो tangential component होता है force का, वो torque provide करता है. Similarly, only the tangential component of this velocity will provide the angular momentum. तो यहाँ पे अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट देखो तो ये हो जाएगा v sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट, और ये हो जाएगा v cos थीटा. और ये वाला जो v cos थीटा होगा, this will not provide the angular momentum. Only this component will provide the angular momentum. So what I can write that L will be equals to angular momentum L as Rm into v sin theta, right? Also, we can write that m into v, this is what? The linear momentum, so r into p sin theta. We can write this way also. It's a one in the same thing. Also, we discussed about moments arm. So we can define this angular momentum in terms of moments arm. So now to understand how to write angular momentum using moments arm, so we have this position vector r, and this is the linear momentum p, right? Now if you see this component, this would be r sin theta. So angular momentum r can be written as p into r sin theta, and this is what r, the moments arm are perpendicular, so we can write that p equals to r perpendicular into p.
and this is what the moment's arm. So we can write the the angular momentum in this term also. Now let's see conceptual example on this. Now it's a very tricky question. It says that does an object moving in a straight line have known zero angular momentum? Always, sometimes, or never? Many of you will say that an object moving in a straight line, suppose with velocity v, mass m, it will not have any angular momentum. It will have only the linear momentum. But your understanding is wrong. It can be a case where it have the angular momentum. You will say how? भाई ऐसे कैसे possible हुआ कि straight body moving in a straight line उसका angular momentum भी हो सकता है? It depends on the choice of your axis of rotation. If your axis of rotation is somewhat here, suppose here is your axis of rotation. Now in this case, this would be your position vector r, right? और ये जो होगा ये मोमेंट्स आर्म हो जाएगा r perpendicular. This angle is theta, right? So what we can write, यहाँ पे जो angular momentum होगा वो कितना हो जाएगा mv into r sin theta. If you choose कि जो तुम्हारा axis of rotation है, it is on the line of on this line, if it is on this line, then इस केस में अगर मैं इसको फिर से एक नई फिगर पे ड्रॉ करता हूँ, अगर हमारे पास ये बॉडी है मूविंग विद वेलोसिटी v, मास m, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन तुम इस लाइन पे ही लो कहीं पे भी, तो यहाँ पे जो इसका लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम होगा वो डिफाइन नहीं होगा. सो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा समटाइम्स. समटाइम्स इट कैन हैव द एंगुलर मोमेंटम, समटाइम इट मे नॉट हैव. इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ योर एक्सिस ऑफ रोटेशन. बेटर फिगर से अगर मैं समझाना चाहूँ तो इससे समझ सकते हो तुम लाइक दिस कि एक कोई मास m है, उसका लीनियर मोमेंटम p है. इफ यू चूज एक्सिस ऑफ रोटेशन टू बी हेयर, तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम इस केस में कितना हो जाएगा r परपेंडिकुलर इनटू p. बट यहाँ पे अगर तुम एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी लाइन पे ले लोगे तो यहाँ पे आप एंगुलर मोमेंटम नहीं लिख पाएंगे. So sometimes it can have a body moving in a straight line can have the angular momentum or it cannot have, depending on the choice of your axis of rotation. Now let's move forward. Okay, next we have the sign of angular momentum. अब angular momentum का sign कैसे देखें, मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. मतलब ये है कि जैसे अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो हम वहाँ पे थीटा क्या लेते हैं, थीटा पॉजिटिव लेते हैं, मतलब थीटा इंक्रीज कर रहा है. इफ थीटा इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो पॉजिटिव होगा. अगर थीटा डिक्रीजिंग कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज में घूम रही चीज, तो वो हम नेगेटिव लेके चलेंगे. तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें, इफ यू सी हेयर, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, एंड देन इट मूव्ड इन अ सर्कुलर मोशन लाइक दिस. तो ये मूवमेंट क्या हुआ है, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. तो यहाँ पे थीटा इंक्रीज कर रहा है. इफ थीटा इज इंक्रीजिंग देन एल जो होगा उसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे. इन दिस केस ऑल्सो, अब देखो यहाँ पे इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं. इफ ऑब्जर्वर इज सिटिंग हेयर एंड ही वॉचेज समवन ऑफ एनीथिंग, मतलब एक मास है जो कि विद वेलोसिटी वी मूव कर रहा है, तो इसके इस रेफरेंस में अगर हम देखेंगे तो इसका थीटा इंक्रीज कर रहा है ना, थीटा इंक्रीज कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो यहाँ पे भी जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो पॉजिटिव होगा. और ये भी एक वो केस स्पेसिफाई एक एग्जांपल है जिसके अंदर अगर बॉडी स्ट्रेट मूव कर रही है तो उसका भी हम एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर सकते हैं. इफ वी आर सिटिंग ऑन एट समवेयर वेयर विच इज नॉट इन दिस लाइन, इस लाइन में अगर नहीं है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, तब उसका एंगुलर मोमेंटम होगा. किसका होगा, मतलब जो मास है दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी भी होगा. बट अगर आप यहाँ बैठ के मतलब यहाँ पे अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लोगे, तब सेम बॉडी का एंगुलर मोमेंटम नहीं लिख पाएंगे हम. तो ये साइन हो गया. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, एक एग्जांपल लेते हैं. तो चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे हमें दे रखा है कि ये हॉकी पग है, इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मास हम इस हॉकी पग का हम ले सकते हैं 0.170 किलोग्राम. स्पीड ले सकते हैं 4.42 मीटर पर सेकंड.
और अगर मैं पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे डिफेंडर खड़ा हुआ है, यहाँ से हमें देख रहे हैं इसको, और हमें इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। थीटा अपन ले सकते हैं 72.5 डिग्रीज, और जो रेडियस आर है ये हम ले सकते हैं 1.45 मीटर। तब बताइए कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा एज बीइंग मेजर्ड बाय दिस डिफेंडर वो क्या होगा। देखो, अगर गोली इसका एंगुलर मोमेंटम देखेगा तो वो तो बोल देगा है ही नहीं, जीरो है। बट अगर डिफेंडर देखेगा तो वो बोलेगा है, एंगुलर मोमेंटम है। तो वो क्या होगा वो हमें डिफाइन करना है। तो अभी हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम एल, इट कैन बी रिटन एज आर एम वी साइन थीटा। ये एक जनरलाइज फॉर्मूला अभी हमने देखा था। ओके, तो आर यहाँ पे क्या है, क्या है आर 1.45, क्या है मास 0.170, क्या है स्पीड 4.42, और क्या है थीटा 72.5 डिग्रीज। सॉल्व करोगे तो ये करीब करीब आ जाएगा 1.04 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम एज बीइंग मेजर्ड बाय दिस डिफेंडर। सेम चीज को हम इससे भी निकाल सकते थे कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इट इज द मोमेंट्स आर्म मल्टीप्लाइड विद द लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv होता है। तो हम इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। आर परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ये है आर परपेंडिकुलर मोमेंट्स आर्म, विच इज इक्वल्स टू बेसिकली व्हाट, आर साइन थीटा। तो घुमा फिरा के यही फॉर्मूला आ जाएगा, आर एम वी, क्योंकि आर परपेंडिकुलर आर साइन थीटा होता है। तो घुमा फिरा के यही फॉर्मूला आ जाएगा और सेम रिजल्ट आएगा। तो चाहे आप इससे निकाल लीजिए चाहे इससे निकाल लीजिए, आंसर एक ही आने वाला है। बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये पग इस गोली की तरफ जा रहा है, तो ये जो अगर रेडियस अगर मैं देखूं, रेडियस अगर मैं देखूं, थोड़ा गड़बड़ हो गया, रेडियस अगर मैं देखूं, ये आर देखूं, तो ये इंक्रीज कर जाएगा। अगर मैं इस पोजीशन में निकालना चाहूँ एंगुलर मोमेंटम एज मेजर्ड बाय द डिफेंडर, आर इंक्रीज कर गया, जो थीटा ये डिक्रीज कर जाएगा। तो बताइए कि एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज, यहाँ पे इस पोजीशन पे एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा। इसको आप सेम ही मान सकते हो, जो मास और स्पीड ये चेंज नहीं हुई, ये सेम ही है। बस ये थीटा और आर चेंज हो गया, थीटा डिक्रीज हो गया है, आर इंक्रीज हो गया है। तब बताइए कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंक्रीज करा, डिक्रीज करा, कि क्या करा, क्या करा। तो देखा जाए तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मोमेंट्स आर्म है आर परपेंडिकुलर, चाहे आप इस केस के लिए लेके चलिए चाहे इस केस के लिए देखिए, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हुई है। अगर ये चेंज नहीं हुआ है, मास और ये स्पीड तो वैसे चेंज नहीं हुआ है, कहने का मतलब एंगुलर मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। राइट, राइट। सो विद दिस आई थिंक आई फिर नहीं, अभी अभी एक टॉपिक और रह गया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, अभी हमने पहले हमने देखा था इन द प्रीवियस सीजन्स की जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स। सिमिलरली द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देखो डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी अगर मैं दिखूं तो क्या डेल्टा एल क्या होता है, डेल्टा एल क्या होता है, आई इंटू डेल्टा एल क्या होगा, सॉरी दिस इज डेल्टा एल, आई इंटू डेल्टा ओमेगा होता है। तो ये हो जाएगा आई इंटू डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी क्या हो गया, अल्फा। तो ये किसके बराबर हो गया, आई अल्फा। मतलब ये डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आई अल्फा। और अभी हमने देखा था पिछले ही कुछ वीडियो में कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन, और वहां पे हमने देख के आए हैं कि जो नेट टॉर्क होता है आई अल्फा के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। और अभी हमने जस्ट देखा है जस्ट कि आई अल्फा किसके बराबर होता है, डेल्टा एल बाय डेल्टा एल। तो ये डेल्टा एल बाय डेल्टा एल्फा, सॉरी डेल्टा एल ओवर डेल्टा एल्फा। तो ये चीज़ काफ़ी जगह हम लोग यूज़ करने वाले हैं कि जो नेट टॉर्क होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है, which is nothing but I alpha. Right? Now let's take an example on this. So यहाँ पे हमें कह रहे हैं a ceiling fan experience a constant torque of 1.9 Newton meter. If the fan is initially at rest, what is its angular momentum 2.6 later? Okay. So अभी हमने देखा जो टॉर्क होता है डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी होता है, राइट।
तो यहाँ पे अगर डेल्टा एल देखो तो क्या होता है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है, इनिशियल इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, तो एल आई तो जीरो हो गया, तो डेल्टा एल किसके बराबर हो गया, एल एफ के बराबर हो गया, एल एफ डिवाइड बाई द चेंज इन दिस इज द टाइम। नाउ इनिशियली अगर टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे एल आई जीरो है, तो t इक्वल्स टू 2.6 पे एल एफ कितना होगा, यही हमें निकालना है। बेसिकली डेल्टा टी किसके बराबर हो गया, 2.6, एल एफ कितना है ये तो हमें निकालना है, और टॉर्क जो इस पे लग रही है, कांस्टेंट टॉर्क दे रखा है, तो ये 1.9 हमें दे रखा है, तो यहाँ से एल एफ की वैल्यू आ जाएगी 1.9 मल्टीप्लाइड विद 2.6, जो कि बराबर हो जाएगा 4.9 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब ये होगा आपके पास फाइनल एंगुलर मोमेंटम। सो विद दिस विल गोइंग टू एंड दिस टॉपिक, बट अभी ये टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में इसी से हम कनेक्टेड एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि इससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बहुत ही प्रैक्टिकल हम इसके ऊपर चीज़ें डिस्कस करेंगे, विच वी कॉल द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और काफ़ी थोड़ी लेंदी होने वाली है नेक्स्ट वीडियो, और बहुत सी प्रैक्टिकल चीज़ें भी देखेंगे जो हम नेचर में समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। तो चलिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।